Hi everybody, Assalamu alaikum. I'm Mohsina Naveed, Admin Services Manager KIMS. We're an OA level school established in 1993 and we're currently offering classes from grade 6 to A level. I'm here today with our A level commerce and computer teachers and we're here to answer your questions about these subjects. Please subscribe to our YouTube channel and press the bell button to get notifications about our latest videos. Let me start with an introduction of our faculty. Let's start with Kamran Sahab. Mr. Kamran Malik, he's the principal of KIMS and he's also the A-level economics teacher. Next to him we have Irshad Chaudhry Sahab, he's the A-level mathematics teacher. Mr. Numan Malik, A-level accounting teacher. Mr. Mubashir Nabi, A-level computer teacher. And Tayyib Ilahi, A-level business teacher. Thank you teachers for being here. My first question is for Numan Sahab. Students who have not studied economics and accounting at O level, how challenging will they find studying these subjects at A level? This is a very important question. Cambridge A-level accounting syllabus recommends that any student who is taking A-level accounting should have studied accounting in O levels. Ji. But in fact, it is not true. The point is, at least in Pakistan, more than 2/3 of the students opting for A-level accounting have no accounting background. Now, on the basis of my 20 years teaching experience, I believe that the student with no accounting backgrounds can outperform provided, number one, the teacher who is taking A-level accounting is teaching accounting right from the scratch. That is, he is assuming that students taking the class have no previous accounting background. Ji. At the same time, it is also expected from the students that the students are not deferring their work. Basically, the consistent hard work is the key to success in any A-level subject. Bilkul. Thank you. Thank you, sir. Kamran Sahab, what are your thoughts on this? मैं नुमान का सेंटेंस बारो करूँगा और ये सेंटेंस बारो करके मैं स्टार्ट करूँगा बात के ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि स्टूडेंट्स को पता लगना चाहिए कि अगर वो इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग ए लेवल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि उन्होंने ए लेवल में ये सब्जेक्ट लिए तो ओ लेवल में नहीं पढ़े हुए थे। असल में जब दो फ़िक्रे मुझे कोड करने दीजिए, एक फ़िक्रा जो क्लासरूम का है और एक फ़िक्रा जो मेरा है। इसके अंदर जो आपके ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर एक फ़िक्रा आता है। अक्सर क्लासरूम में ये फ़िक्रा होता है कि मैं बच्चों से जब पूछता हूँ कि आपका ओ लेवल के ग्रेड बताइए तो बच्चे बड़े प्राउडली मुझे इकोनॉमिक्स ओ लेवल का ग्रेड बताते हैं। तो मैं कहता नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आप बताइए आपका ओ लेवल मैथ्स में क्या ग्रेड था, ओ लेवल इंग्लिश में क्या ग्रेड था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ओ लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, ए लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा क्लास 6, 7, 8 का जो मैथ्स है वो जिन बच्चों का अच्छा है, दे आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ डूइंग वेल इन इकोनॉमिक्स। पेरेंट्स मुझसे अक्सर ये बात करते हैं पीटीएम के अंदर कि हमारे बच्चे ने चूँकि ओ लेवल में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी इसलिए ए लेवल में स्ट्रगल कर रहा है। मैं उनको बताता हूँ कि ये शायद सही नहीं है। अगर उसको ओ लेवल में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो हैंडीकैप नहीं है। वो अगर ए लेवल इकोनॉमिक्स में स्ट्रगल कर रहा है तो वो उन दो बातों के स्ट्रगल कर रहा है जो नुमान ने रेफ़र की कि वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहा या उसका मैथ्स में उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स ए लेवल पढ़ने के लिए ओ लेवल इकोनॉमिक्स ज़रूरी नहीं है और स्टूडेंट्स विदाउट ओ लेवल इकोनॉमिक्स कैन डू प्रीटी वेल एट ए लेवल इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। थैंक यू। Thank you. I think बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी। इरशाद साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स who don't have the aptitude for math, do they afford dropping the subject? मैडम, ड्रॉप करने वाला तो बिल्कुल सीन नहीं। हम प्रेप क्लास से स्टार्ट करके जी। अब थ्रू आउट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। एट द एंड 11 के बाद या ओ लेवल के बाद हम कहते हैं कि मैं ड्रॉप कर दें। जी। मतलब ये हमारा सिर्फ ज़हन ये होता है कि जी मैथमेटिक्स मुश्किल सब्र किया जा रहा है। हालांकि मैथमेटिक्स हम वही बात है कि जी प्रेप से स्टार्ट करते हैं और तमाम क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ते आते हैं। मुश्किल क्यों हो जाता है? मुश्किल इसलिए होता है कि हम नई चीज़ें करते हैं, प्रैक्टिस की तरफ नहीं आते। अक्सर ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आसान है, लेकिन किस चीज़ की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस हमें उस चीज़ की करनी चाहिए बेटा कि जो चीज़ हमें आती है उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो नहीं आती उसकी तो प्रैक्टिस नहीं है। अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें जो चीज़ आती है और फिर हम उसको आगे लेके चलें तो मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं रहेगा, तो वो जहन में कंसेप्ट ही नहीं आएगा कि मैथमेटिक्स ड्रॉप करना चाहिए। जी। दूसरी बात,
No one can refuse the importance of mathematics. बिल्कुल बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मैथमेटिक करता क्या है. मैथमेटिक इन्हांस द एबिलिटी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डेली लाइफ के प्रॉब्लम बिल्कुल है हर उनको हर कैसे चीज़ सॉल्व में करना. जी पावर ऑफ थिंकिंग डेवलप करता है ये आपकी, क्रिएटिव माइंड हो जाता है आपका. क्रिटिकल रीजनिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी दुनिया में. क्रिटिकल रीजनिंग है जिससे आप दूसरों को कायल कर सकते हैं. मैथमेटिक पढ़ने से बेसिकली तो होना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं, तो फिर हमारे जहन में कभी भी नहीं आएगा कि मैथमेटिक्स ड्रॉप करना बिल्कुल चाहिए. बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्जेक्ट है. कामरान साहब, यू आर ऑल्सो वेरी बिग एडवोकेट ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप बताइए योर थॉट्स ऑन दिस. देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, और थोड़ा मैं बदनाम भी हूँ इस पर कि मैं मैथ्स को बहुत ज़्यादा एडवोकेट कर जाता हूँ. मैं अंडरस्टैंड करता हूँ बच्चों को मैथ्स में डिफ़िकल्टी आती है, और इसमें बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी है, शायद 6, 7, 8 में उतनी क्वालिटी का मैथ नहीं पढ़ाया जा रहा जो ज़रूरी होता है बच्चे की एक बैकग्राउंड प्रिपरेशन के लिए. पर मैं एक स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स जो है वो एक टूल है बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए. तो आप इकनॉमिक्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स बनना चाहते हैं, तो प्रॉब्ली इकोनॉमिक्स और साइंस के सब्जेक्ट ज़्यादा ज़रूरी नॉलेज शायद मैथ्स में बन जाएगी, कि मैथ्स टूल है जो आपको हेल्प करेगा बाकी सब्जेक्ट्स को. मैं लम्स की मिसाल अक्सर देता हूँ. लम्स बेंचमार्क है, प्राइम इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का. तो लम्स के अंदर चाहे ह्यूमैनिटीज़ में भी आप जाना चाहें, वो तब भी आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड देखना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि आपके मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी क्या है. तो मैं अक्सर ये फिक्रा कहता हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर मुझसे को पूछे कि ए लेवल में कौन से हैं, तो मैं कहूँगा नंबर 1 मैथमेटिक्स, नंबर 2 मैथमेटिक्स, नंबर 3 मैथमेटिक्स. मसलन वो बच्चा जो इकनॉमिक्स पढ़ना चाहता है ए लेवल के बाद, उसने इकनॉमिक्स अगर नहीं भी पढ़ी ए लेवल पे, तो वो अच्छा कर लेगा ए लेवल के बाद इकनॉमिक्स में, प्रोवाइडेड उसको मैथ्स आता है. इसी तरह एक बच्चा कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसने मैथ्स कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा ए लेवल में, वो फिर भी शायद अच्छा कर लेगा कंप्यूटर साइंस में अगर उसने ए लेवल में अच्छा मैथ्स पढ़ा है. तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस को वन कैन नॉट ओवर एम्फसाइज. थैंक यू. बहुत इंपॉर्टेंट. तो ये माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. Is business as easy as everyone says? Because you know admission के time, subject selection के time, you know when students want to go for easy subjects, they think चलो business रख लेते हैं. So is business really an easy subject, or is it a misconception कि business easy है? Well, frankly speaking, that is one of the most common misconceptions that I've come across. That's why I asked. Since I started almost 10 years ago, and this is the first surprise that students get caught up with is that they walk in thinking it's easy. And frankly speaking, for all students who think that this is easy, who think it's a walk in a park, it's simply the Jurassic Park that they're actually walking in. It's nothing really different. And there are many facts that actually support this evidence. There is evidence to support this. अगर हम internationally देखें, Cambridge के international website पे देख लें, the A-level pass ratio. If we were to conduct a comparison, if we were to say that this is an easy A grade, तो obviously it's not. Overall, worldwide rankings के मुताबिक, students who get an A grade in business stand around 12%. Economics, accounting, approximately around 25%. Sciences, even 30% plus. And the failure ratio is even much higher. Okay. But when we look at the failure ratio for A-level business or even sociology, there are around 17% students who do not actually get a passing grade. So majority of the students do get this wrong. And the major prerequisite for this subject, even though we start from the basics, if I was to compare the AS and the A2 content, so it's more like when a student gets enrolled in AS, so he's on the runway. And he's just like a plane going, just running to take off. Like, and when they get into A2, it's a very steep learning curve. And that is where students really find out the reality. It doesn't make much difference कि अगर एक student ने O-level business पढ़ा है नहीं पढ़ा. My first question to every student is only this, that what was your grade in O-level English? And anyone who has anything B or above, I do recommend them the subject. But at the end of it, this is a tricky subject because even though when you sit down and you try to read it, it's really easy. It seems like it's common sense, and over the years I found out that common sense is not really that common these days. And at the end of it, consistency is the key. As Sir Numan and Sir Kamran said earlier, the route to all success is hard work. So if students walk in with this mind frame that business is actually an easy subject, they are living in fool's paradise. That's not the way to go about it. They need to be mentally ready that if they're signing up for A-level business, so they are actually going to be required to put in much greater effort than they could have done otherwise for other subjects. And because this requires creative writing, this is a subject that actually forces students to eventually utilize both the logical and the creative part of their brain. And that is where it becomes difficult because you have to derive a balance. There are no MCQs in the papers, you have to write detailed essays.
So the most important attribute that I would say is that if a student is actually able to write expressively, if they are able to translate their thoughts onto paper, so this is the subject that could turn out to be easy for you. But at the end of it, again, it's all about the effort that they put in. It's the basic ideology that you choose a subject thinking that it's easy. It's not true for any subject A levels. Yeah. Not just business, but any subject. We call it advanced level for the very same reason that it is actually advanced. And frankly speaking, when I did my A-level business back in 2000, and after that I did my ACCA, and I came across some topics that I had done in A-level business at the final stages of my ACCA. So it becomes really technical, especially students at the end of it, when it comes down to the paper 3, which is the more difficult one. They are actually expected to behave like a full-fledged business analyst. They should be able to connect the dots. They should be able to interlink one aspect of one business activity and how it might impact any others. So I think that's the idea. That was very useful information. Tayyab, Kamran Saab, would you like to add to this? हाँ जी बिल्कुल ऐड क्या मैंने करना है। तैयब ने इतना लंबा और कंप्रीहेंसिव आंसर दिया, डिटेल आंसर दिया कि इसमें मज़ीद कुछ कहने की मेरे लिए उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन मुझे इसमें ज़रूर कुछ कहना है। वो इसलिए कहना है कि मेरी इस सब्जेक्ट से जो एसोसिएशन है वो मेरी मोर देन हाफ ऑफ माई लाइफ इज़ विद दिस सब्जेक्ट। और मैं नहीं बताऊँगा कितने सालों से है, क्योंकि फिर आप मेरी पूरी एज का अंदाज़ा लगा लेंगे। तो बिजनेस सब्जेक्ट आसान भी है, मुश्किल भी, और वेरी एलिक्वेंटली सेड बाय तैयब कि अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है तो प्रॉब्ली यू विल फाइंड दिस सब्जेक्ट ईजियर। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स डिफ़िकल्ट हैं, आपको लिखना इतना अच्छा नहीं आता, तो जो चांसेस कि आप स्ट्रगल करेंगे इस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा हैं। और उसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश सीखना और लिखना। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम परसेंटेज है जो बच्चे कंफर्टेबली लिख सकते हैं, और ज़्यादातर बच्चों इसमें डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, और वही वजह से फेलियर रेट भी इसका हाई है। तो इसमें बच्चों को अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, नॉट ओनली बिजनेस स्टडीज़ बुक्स, उनको अच्छे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, उनको लिखना अच्छा है और अच्छे वो कोड दे सकें। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस सब्जेक्ट में, जो इसको दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट करती है और चैलेंज बन जाता है इस सब्जेक्ट में, वो ये कि इसमें एप्लीकेशन की जो स्किल है वो कहीं ज़्यादा टेस्ट होती है कंपेयर टू द सब्जेक्ट्स। आपको हर क्वेश्चन का आंसर उसके मुताबिक, जो सिचुएशन आपके सामने आई है एक केस स्टडी में, उसके मुताबिक अपने आंसर को मॉडिफाई करना है। आपको अपने आंसर मॉडिफाई करने हैं, आपको क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं करना। जब आंसर मॉडिफाई करना है और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस फॉर विच केस स्टडी इज रिटन, वो जब आपने कॉन्टेक्स्ट कोड करना है, उसमें बच्चे बाज़ एक स्टीरियोटाइप आंसर देने की कोशिश करते हैं और वो फेलियर रेट या उनका जो लो ग्रेड की कॉज बन जाता है। तो अच्छा पढ़ें, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखने की ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली टिप टू डू बिजनेस ए लेवल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कामरान साहब। मुबशिर साहब, आप प्लीज़ ये बताइए कि आईटी और कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंस है? बिकॉज लोग कंफ्यूज होते हैं कि यू नो विच सब्जेक्ट टू चूज़। आप क्या रिकमेंड करते हैं और दोनों में डिफरेंस प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। Okay, so computer science is the engineering part. It's the part where you build the program. Okay. So for example, if you want to build a word processor, the person who's programming the word processor is the engineer. But normal people, teachers, lawyers, doctors, they all use word processors to do what they do best. A doctor might use it for writing his reports. A teacher, can use it to write his notes. So the use of the program, the use of the tools or the programs that we build is the IT part. IT part. The building is the computer science part. So अगर मैंने आपको इसकी एक analogy देनी हो, so अगर आपके पास एक let's suppose you have a car, the designing of the car, the building of the car, and the maintenance of the car is the CS part. And the using of a car by a person to, let's say, go from his home to his workplace so that he can work, that's the IT part. So that's the difference basically in a nutshell. And which subject would you recommend? Okay, very easy key here is that if you want to be an engineer, any sort of engineer, you want to be a mechanical engineer, an electronic engineer, you want to be a computer engineer, software engineer, then CS is the key. You have to study CS. But if you don't want to be an engineer, if you want to be a lawyer, a doctor, a teacher, any other professional, then IT is the best thing to learn. Okay, thank you. Numan Saab, for a career in accounting,
Is it true that studying A-level maths is more important than studying A-level accounting? It's a difficult question to answer. Reason being, I am an accounting teacher and I have to support mathematics. If I have to make a choice between the two, obviously my choice would be mathematics. Because mathematics, what I believe, is has a role to play in each and every field. बिल्कुल. So that's why, as far as accounting and finance is concerned, what I believe or what I have experienced as well, that in finance there is more role of mathematics than accounting. And moreover, the good thing is that in A level we have to take more than one subject. So that's why, and if any student is going for accounting and finance field, I would suggest that he should go with mathematics and accounting at the same time. दोनों कर लें, ठीक है. इरशाद साहब, what do you feel about it? नुमान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा. वो उन्होंने मैथमेटिक्स को पहले ही कह दिया कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. बिल्कुल. किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना हो बेटा, तो सबसे पहले चेक करें कि वो किस चीज़ का आपसे टेस्ट लेते हैं. मैथ्स का. सेट 1 स्पेशली, देन सेट 2 इंग्लिश. काउंटिंग तो कहीं भी नहीं है. आपने सीए में जाना हो, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कहीं भी एडमिशन लेना है, तो मैथमेटिक्स के बगैर तो एडमिशन नहीं. वो एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि इनका क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं है. बस सिंपल. तो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है. नुमान साहब भी सही. चलिए, आंसर हो गया. इरशाद साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से है. अगर बच्चों ने ओ लेवल में एड मैथ नहीं पढ़ा हुआ, विल दे फाइंड ए लेवल मैथ्स डिफिकल्ट? नॉट एट ऑल. नो. ओ लेवल में एड मैथ पढ़ना ये ज़रूर है कि आपका एक प्लस पॉइंट है बेटा, कि आप ए लेवल में कंपैरेटिवली आसान हो जाता है. बट किम्स में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो ये समझ के पढ़ाया जाता है कि बच्चे ने एड मैथ नहीं आप किया था ओ लेवल में. बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करते हैं, और एड मैथ पढ़ना न पढ़ना कोई मैटर नहीं है. आसान है. हाँ, इसको आसान, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ का आपको. एक बेटा बीएससी की एक रात थी, टीचर ने हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एक्सरसाइज स्टार्ट की. मुझे अभी तक याद है 10.2 एक्सरसाइज है वो. उसके 12 क्वेश्चन थे. सर ने पहले 2 क्वेश्चन हमें क्लास में सॉल्व करवाया. ओके. फिर याद थी रात को खाने के बाद बैठ के पढ़ना शुरू करते थे, और सबसे पहले वही क्वेश्चन स्टार्ट करता था जो टीचर ने करवाए होते थे. शायद मैंने 10 बजे करीब स्टार्ट किया, और बेटा सुबह की अज़ानें होगी, वो 2 क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए. सेम वही 2 क्वेश्चन में सॉल्व करता रहा. सारी रात गुजर गई, अज़ानें हुई, मैंने उठा, मैं कह यार ये तो नहीं आता. सुबह टीचर ने पूछा, बेटा कितने क्वेश्चंस किए हैं आपने? होमवर्क पूरी एक्सरसाइज का था. मैंने कहा सर मुझसे बच्चों ने किसी ने 4 कहा, 5 कहा, 6 कहा. तो मैंने कहा सर मुझसे 2 क्वेश्चन नहीं हुए. टीचर ने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया. यू बिलीव कि नेक्स्ट पूरा मंथ वो टॉपिक चलता रहा, और मुझे घर जाके एक दिन नहीं पढ़ना पड़ा. मुझे वहीं सब कुछ समझ आ रहा था, और मेरी प्रैक्टिस सबसे अच्छी थी. बहाल मेरा आई हैव गोल्ड मेडल इन बीएससी एज वेल. माशाल्लाह. मैं बताने के लिए एमएससी में गोल्ड मेडल है. सिर्फ सिंपल कि जो चीज़ आपको टीचर करवा रहे हैं सबसे पहले उसमें स्ट्रेंथन लें, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे तो आसान हो जाएगा. और मैथमेटिक्स को आसान करने का सबसे एक टिप है, इसी हवाले से बात करूँगा मैं बेटा. वो टिप क्या है कि जो काम टीचर ने कराया है जिस दिन, उस दिन जाके करेंगे तो वो आपको 15-20 मिनट हाफ आवर लेगा. 2 दिन के बाद करेंगे वही 4-5 घंटे लगेगा, और क्लियर भी नहीं होगा. थैंक यू. थैंक यू. मैं इसमें छोटी सारी बात दोबारा आपको रिपीट करना चाहूँगा जो आपने पहले सेगमेंट में कही, कि जो पहले क्वेश्चन आंसर करते हुए आपने कही कि प्रैक्टिस उसकी करें जो आती हो चीज़. तो पहले टीचर का दिया हुआ काम समझ लें, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेहतर होगा. तो और जो रोज़ाना काम रोज़ाना करना है, ये बहुत ज़बरदस्त टिप. मैं समझता हूँ ये बहुत ही यूज़फुल आंसर शाह साहब ने दिया. थैंक यू जी. तैयब, आप ये बताएं कि इज बिजनेस क्रेडिटेड हाफ इफ इट स्टडीड अलोंग विद इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग? Well, that's again another misconception. I don't know एक तो business के खिलाफ ये rumors क्यों चल रही हैं, but the idea is कि when it comes down to that, this was true back in 2008. Okay. There's a group of universities by the Russell Group back in UK, and 24 universities go into that. At that time, they had this objection to this कि business when taken along with economics or accounting should be considered a soft subject or a half credit subject. But that was all in the past, and right now business is actually one of the more preferable subjects for university admissions,
Because especially when students take up A-level business, it does not just prepare them for the subject content. It actually is a subject that is going to prepare them for the entire university life. It enhances their communication skills to a much greater extent. Develops their critical thinking. Their communication skills and interpersonal skills become the pivotal part. And then when it comes down to, at the end of the day, if I was to say that why should anyone take business? So the fact of the matter is that whatever profession you take up, either you set up a business or you work for a business. And if you know the dynamics that how it actually works out within a business, so it's a piece of cake for you. So just considering that कि business is actually a half credit subject, that's not true for almost any of the universities, and we have evidence for that. हमारे ex-Canadians हैं, Had Akram, he went into LUMS with these three subjects: economics, accounting, business. He did not even have maths. Yet Taniyat Amjad, she won the Dean's Award in LUMS. They both had these combinations, and it wasn't here so or basically this used to happen, not anymore. Well, it was only for a very selected group of universities, and that ended a long time ago as well. It was all back in 2008, and I don't know why do we still keep hearing the same thing about that. चलें, बात क्लियर हो गई, थैंक यू. एंड मुबशिर साहब, आपके लिए क्वेश्चन एक और ये है कि इफ स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी कंप्यूटर साइंस, should they study physics and maths as well? Is it compulsory? Or can they do computer science without studying these two subjects? ज़रूरी है पढ़ना मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए, या ऑन इट्स ओन कंप्यूटर साइंस पढ़ा जा सकता है? That would be a very big mistake for two reasons. Number one, mathematics and computer science are tied together. You can't have mathematics without computer science without mathematics. So in most universities and in most careers, if you, like for example, computer engineering, software engineering, if you try to get into a university without having mathematics, most probably universities will not give you an admission. Mathematics is an absolute necessity. Okay, the next is physics. Outside Pakistan, you may have a university which will give you admission without physics, but I will strongly recommend not to make that mistake, because what if your university, your desired university, doesn't give you an admission and you have to settle for something else? So it is always the best possible combination that you keep mathematics, you keep physics. If possible, if you are aiming for an engineering career, chemistry as well. Okay. But if you are aiming for just computer science, computer science is also, there is a wide variety of career path in computer science as well. So if you are going for software engineering, then you don't need chemistry. Then you can have physics, mathematics, and computer science, right? Okay. And if you want to take a fourth subject, I would probably recommend you business studies. The reason why I want to recommend you business studies, because once you get into a career in software engineering, there comes a time when if you don't have business development abilities, if you can't manage a team, then you are kind of like what dispensable for the software house. So it's better that if you want to become an entrepreneur and you want to do something in software engineering, you want to build something for yourself, then you should have some type of business support as well. But mathematics and physics are two subjects that you should not even think of dropping. With computer science, ठीक है. Now coming to the next question, which isn't really related to the subjects we're discussing today. वो general है आजकल के हालात के बारे में, the situation these days with corona and students sitting at home having a lot of time on their hands, parents परेशान हैं. तो what should they be doing these days? How can they utilize this summer break? ये मैं चाहती हूँ आप सब आंसर करें one by one. तैयब, let's start with you. आप क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स? Well, firstly, I hope कि हमारे सारे viewers ठीक ठाक होंगे and they're safe from this COVID-19. But given the scenario that now we have all of us have a lot of time on our hands, and especially for the students, this is actually a perfect time to explore many opportunities. Given the fact that this is a tech-savvy generation and they are highly mobile-friendly and they have access to the internet all the time, and the YouTube is not just for entertainment. There are many useful, knowledgeable resources there that they could utilize. They could even consider their future university admissions, उनकी requirements, उन पे survey करें, उन पे research करें, so that they know what choices they might need to pursue in the future. And obviously, finally, if there is an opportunity to spend time with your family, to do value it. I think we need to all stay emotionally healthy in this tough time. Right. Thank you, Tayyib. Mubashir साहब, आप बताएं. Okay,
मेरा आइडिया इसमें ये है कि आप अपनी एकेडमिक्स पे तो नॉर्मली काम करते ही रहते हैं, बट दिस इज़ एन आइडियल टाइम टू वर्क ऑन समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली एकेडमिक्स. Take up a hobby, learn something new, learn a language, even a spoken language. If you are a computer science student, learn a language that you always wanted to study, but the syllabus is not offering you that thing. So anything other than your academics would keep you, one, interested, second, busy, and third, probably in the same state of mind. ठीक है, वेरी गुड. नुमान साहब आप. जी, क्योंकि हम एक डिफरेंट सिचुएशन में हैं तो मेरा ख्याल ये है कि दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, दिस इज़ द टाइम ऑफ प्लानिंग. तो हमें कुछ प्लान करना है. प्लान क्या करना है? पहली बात तो हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारे गैप्स क्या हैं, किस जगह पे हम लैग करते हैं, कौन सी हमारे में डेफिशिएंसीज हैं, कहाँ हम प्लान कर रहे हैं कि 4 ईयर्स बाद 5 ईयर्स बाद हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं. उसको अचीव करने के लिए हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, उस गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है. और ये डेफिशिएंसी कई हो सकती हैं. अगर आप जिस तरह SCT वगैरह में हम देखते हैं तो रीडिंग पोर्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जिसको नॉवेल्स की रीडिंग का शौक़ नहीं है उसके लिए ज़ाहिर बात है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अपनी आइडेंटिफाई करें कि आप कहाँ पे लैग करते हैं, जो जो डेफिशिएंसीज हैं उनको कवर करने की, उनको ब्रिज करने की कोशिश करें. दिस इज़ द आइडियल टाइम टू डू बेस्ट टाइम है, बिल्कुल. इरशाद साहब, व्हाट आर योर थॉट्स? क्या करें बच्चे, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? मैडम, मैं समझता हूँ कि जो ये वक्त चल रहा है इसमें सबसे पहले हेल्थ है हमारी. हेल्थ में अब स्टूडेंट की हेल्थ, पेरेंट की हेल्थ, सबकी ऑब्वियसली आ जाती है. उसमें मैं समझूंगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिज़िकल एक्सरसाइज हो, गेम्स करें बच्चे. इंडोर गेम भी हो सकती हैं, आउटडोर भी हो सकती हैं. सपोज कैरम है, आराम से बैठ के कैरम फैमिली मेम्बर्स घर में बैठ के खेलें. तो प्लानिंग होती है, लूडो खेलें बेशक. अगर टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, इंडोर गेम्स कुछ भी हो सकती है. बहरहाल एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सेहत होगी तो सब कुछ होगा, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं. ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने. फाइनली कामरान साहब आप बताएं. नहीं, मैं सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सब ने ये, एंड थैंक यू मोहसिन फॉर आस्किंग दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये सब लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कवर किया है. तो मैं इसको समा भी कर देता हूँ. तो मैं चॉइसों की बात से इनिशिएट करूँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, पार्क्स और ग्राउंड्स, तकरीबन ग्राउंड्स तो चले नहीं खुले, प्लेइंग ग्राउंड शायद अभी मेरी इन्फॉर्मेशन मुताबिक, लेकिन पार्क्स वगैरह ओपन हैं. और पार्क्स में ना भी जा सकें अगर तो घरों में पास एक सड़क भी है तो उस पर भी वॉक करना. तो फिज़िकल अपने आप को एक्टिव करना, ये हमें थोड़ा सा कल्चर हमारा ऐसा चेंज हो गया है कि हम ज़्यादा मशीनों के आगे बैठते हैं और बहुत कम हमें मौका मिलता है फिज़िकली एक्टिव होने का. तो स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो, उनको चाहिए कि चाहे घर के पास हों, चाहे पार्क में किसी जा सकें, तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. और ये इस मौके को बहुत गनीमत जानिए और अपनी एक आदत बना लीजिए ताकि जब बिज़ी भी हों तो ये प्रायोरिटी में आ जाए. दूसरी बात, अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छी मूवीज़ देखें. आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपका सोचने का अंदाज़ बढ़ेगा. आप बड़े ख्वाब तभी देखेंगे जब आपको अच्छे अल्फाज आते हैं. आपकी वोकेबलरी आपकी ख्यालात को डिटरमिन करती है. तो वोकेबलरी अच्छी होगी अच्छी किताबें पढ़ने से और बहुत अच्छी कलेक्शन ऑफ मूवीज़ देखने से. तो वो तीसरी बात कि बैलेंस करें. जो डिजिटल मीडिया है ये नहायत बड़ी ब्लेसिंग है, इसको कर्ज ना बनाएं. इसमें बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, वो यूज़ करें. यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हैं चीज़ें कि आप मैथ्स के नए कोर्सेज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, IT की डिफरेंट, एक्सेल को सीखें, बहुत प्रोडक्टिव होंगे आप. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इतनी वर्ल्ड है पूरी एक, अगर वो सीखें विल बी लॉट मोर प्रोडक्टिव फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिलीज एंड फॉर योर ओन स्टडीज़. तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो समर ब्रेक में आप कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स nothing can be said over the importance of time you'll spend with your family and with your loved ones. Stay safe. Thank you. कमर साहब, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे. हम कोई भी हमने जॉब हासिल करनी हो, बिज़नेस करना हो, तो हम प्लानिंग करते हैं कोई शुरू में. और प्लानिंग मैं समझता हूँ कि अगर बचपन से हम कोई गेम खेल रहे हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो रही है, और मैंने बच्चों को देखा है वो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि यार मैंने विन कैसे करना है. और हर रोज़ एक नया प्लान, हर एक नया प्लान, और इससे हमें आदत पड़ेगी प्लानिंग की. और हम फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए अगर बच्चे घर में गेम खेलें. और ये बड़ा अच्छा टाइम है, इस वक्त भी खेल सकते हैं, वैसे रूटीन में खेलनी चाहिए. बहरहाल ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप घर में प्लानिंग करते रहते हैं बच्चे, और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू इरशाद साहब, थैंक यू ऑल द टीचर्स इन फैक्ट फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूबल इनपुट इस डिस्कशन के लिए, जो आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत यूज़फुल लगी होगी.
अगर कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं, प्लीज़ यू कैन इनबॉक्स देम टू अस ऑन आवर फेसबुक पेज, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, थैंक यू फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।